Hello friends, there was few comments on the YouTube and few of my friends, very close friends, they have asked me to make an video on Sadhasati. Though last time, I think few months back, I've already made a video on Sadhasati, but then I think there was something wrong with the audio, and even now when I tried, the earlier one was the audio was a problem. I don't know what is the problem with it. Anyway, now coming to Sadhasati, there are many videos on YouTube. There are many people talking about Sadhasati. And before I start this video, I want to first show my and express my gratitude to all my mentors, my teachers, whom I follow, whom I uh, take them as my guru. Now, there are few things in Sadhasati that I have learned in my long journey in astrology. Now, first of all, before we start this particular video, I would want to first clarify and let you know what do you mean by the word Saraswati. See, for this I will have to show you a chart first so that you understand what Saraswati actually means. And then we will talk about which are the Rashis and which are the moon Rashis are undergoing Saraswati right now. So first, let us understand this which, very particularly. Now, I would want you to understand this through this chart. See, as you can see over here, you must always first remove your chart, keep it in front of you, and then look where your moon is. Now, wherever your moon is, you see which is the number next to it. Now, I will give you a fair amount of idea how to identify your Rashi. If there is number 1 written over here, if it is number 1 next to the moon, it means you are a Aries or you are a Mesh Rashi. If it is 2, it is Tauran or Vrishabh Rashi. If it is 3, it is Gemini or Mithun Rashi. If it is 4, it is Cancerian or you can say Karka Rashi. If it is 5, Leo, Shriya Rashi. If it is 6, it's Virgo, that is Kanya Rashi. If it is number 7 written over there, it means you are a Libran by Moon Rashi, and that in Hindi it is called Tula. Then we have got number 8, that is Vrishchik Rashi, Scorpio. Number 9 is Sagittarius, which is Dhanu Rashi. Number 10 is Makar Rashi, Capricorn. And number 11 is, like in this case, number 11 is an Aquarian, that means a Kumbh Rashi. And the last zodiac is Piscean, which is Meen Rashi. Now, we have to see that whenever, suppose this is the moon, whenever Saturn, यानी कि शनि देव जब भी, whenever शनि देव भ्रमण करते हैं, when it transits, see it. Now, for example, on the 24th of January 2020, this year, Saturn was in Sagittarius, where there was no Saraswati for Aquarian. The moment on the 24th of January it entered this sign, Saraswati began for them, and because it has entered Capricorn. Now you can see one sign behind and one sign next. Whenever Saturn is going to remain in this particular position, it's going to be a Saraswati for Aquarius. Now, if you look at this, Saraswati will go like this. When it was in Scorpio, then Saraswati was for this sign, and this sign. When it entered here, it was for this sign, and this sign. So I will what I want to tell you is Saraswati is to do with Shani Dev. Now Shani Dev is a very slow moving planet, और इसीलिए शनिदेव को हम शनै शनै चलने वाले ग्रह कहलाते हैं. ये बहुत ही धीमे चलते हैं. It revolves around the sun in almost 30 years. And if you break this, then you, in the 12 zodiac sign, it takes around, ये
भ्रमण करने के लिए लगभग 2.5 years यानी कि 2.5 साल लगाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा 2.5 साल इस साढ़े सती, दैट इज 7.5 साल। नाउ just understand कि wherever is your moon and which is the number given over there, उससे एक नंबर पहले, now for example let us forget about all this, let us now talk about only this sign Aquarius। so Aquarius के लिए 24 जनवरी को यहाँ पे शनिदेव आ चुके थे। तो फर्स्ट दहिया, सेकेंड दहिया एंड थर्ड दहिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट शनिदेव की साढ़े सती क्या होती है। Now I will give you few of the points which are very important, very important. You have to, if you want to understand what Saraswati is going to bring in front of you, you have to only go back 5 to 7 years and look at your karmas. And I will tell you, nobody on this planet is supposed to judge you except for yourself. That means you have to introspect. आपको पता लगाना है कि what have you done in life. The money you have earned, the people who are your subordinates, people who are working under you, आपने ये पैसा, आपने ये जो भी काम 5, 6, 7 साल, 10 साल में जब भी किया हो, is there something that you yourself feel that you have, whatever you have hurt someone? It could be your parents, it could be your brother, sister, friend, whatever it is. Have you earned this money through wrong means? Have you not paid your paid salaries to your employees? Have you did some malfunctioning in the PF and the ESI? मतलब मेरा मतलब बोलने का है कि अगर आपने कोई भी चीज़ गलत की है, और सबसे ज़्यादा जिस भी ओहदे पे आप बैठे हो, जिस भी पोजीशन में आप बैठे हो आज, अगर आप को उस पोजीशन का, उस रुतबे का घमंड है, वे यू आर मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो ये होता, ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली पुट यू इनटू ट्रबल। बिकॉज व्हेन शनिदेव की जब साढ़े सती लगती है, शनिदेव की साढ़े सती के अंदर आपकी ना महादशा, ना अंतरदशा, ना प्रियंतर दशा कुछ काम नहीं करेगी। बिकॉज दिस इज अ 7.5 years विच इज गोइंग टू बी ओनली शनिदेव हु विल बी bringing the karmas in front of you. Now we have to understand how Shani Dev plays. पहली बात तो है, बिकॉज चंद्रमा की बात करता हूं, शनि देव प्लेस ऑन योर माइंड। शनि देव जब ढैया लगती है, जब पहला ढैया लगती है, मतलब साढ़े सती स्टार्ट होती है, when it starts you will see that you will get lot of lucrative offers. आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हो, उस जगह पे आप अच्छे बैठे हो, एवरीथिंग इज फाइन इन योर लाइफ, बट एकदम से आई शुड ट्राई फॉर समथिंग एल्स, आई शुड स्टार्ट माई बिजनेस, एंड देन यू गेट गुड ऑफर्स ऑल्सो। आपको बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, और आप उन जगहों पे पैसा भी लगाते हो। मान लो कि आपने 4 लगाया तो 8 मिला, 8 लगाया तो 16 मिला, 16 लगाया तो आपको 32 मिला। शनिदेव आहिस्ता 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 आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, और फिर इस तरह से खींचेंगे कि आपके जेब में एक आठाना, एक रुपया भी ना छोड़े, अगर आपका कर्म गलत है तो। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। साढ़े सती में मैंने ये भी देखा है कि जैसे ही साढ़े सती लगती है, अधिकांश ज़्यादातर लोग का एक लोकेशन चेंज होता है। इट कुड बी विद इन द सिटी, विद इन द स्टेट और वट एवर, बट देयर इज अ जोग्राफिकल और देयर इज अ मूवमेंट इन लाइफ। यकीन कीजिए, मैं 2 साढ़े सती निकाल चुका हूं अपनी लाइफ की, एंड आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, आई एम गिविंग यू माई ओन एक्सपीरियंस। जब मुझे साढ़े सती लगी थी, आप यकीन जानिए कि मैं 4:15 बजे से लेके 4:15 साढ़े 4 बजे मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, और मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अभी आज से 6 घंटे बाद, यानी कि रात के लगभग 10:30 11 बजे मैं बॉम्बे छोड़ दूंगा। उस बॉम्बे को जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा सब कुछ हुआ हूँ, और उस तरह से मुझे जहाँ से निकाला गया कि मैं आज तक, अभी तक बॉम्बे लौटा नहीं हूँ। मतलब मैं गया हूँ बॉम्बे, बट मुझे उस जगह पे जाने को नहीं मिला, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो पाया। दूसरी बात है, यू हैव टू इवन अंडरस्टैंड, साढ़े सती आपको कुछ सिखाने जा रही है,
कुछ बताने जा रही है। वो अच्छे बुरे की पहचान कराएगी, आपका कौन मित्र है, कौन दोस्त है जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। इन चीज़ों के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा आपको। आप कौन आपका रिश्तेदार है, कौन रिश्तेदार नहीं है। एवरीथिंग विल बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू अकॉर्डिंग टू योर कर्मस। आई एम रिपीटिंग दैट नाउ। We have to even understand few things which is very very important over here. मैं आपके सामने वो चीज़ों को ज़रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शनिदेव, ये मेरा अपना रिसर्च है, ये मेरा अपना अनुभव है। शनिदेव हमेशा आपको ऐसी परिस्थितियों में डालोगे जिसमें इट्स गोइंग टू बी अ लेसन। आपको दिखेगा ऐसे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपेंड, एवरीथिंग इज लाइक नॉट फॉलोइंग इन प्लेस, बट देर इज ऑलवेज अ लेसन बिहाइंड इट। और अगर आपने इस लेसन को समझा, अगर आपने रेसिस्ट नहीं किया, अगर आपने मतलब कुछ ऐसी आदतें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी को दुख पहुंचाया हो, चाहे वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, या कुछ ऐसा हो जिसमें आपने उसको अनरीजनेबली छोड़ दिया हो, ओके, और आपके छोड़ने पर उस व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम हुई हो, यकीन जानिए शनिदेव उस चीज़ को ज़रूर आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। दूसरी बात, वी हैव टू इवन अंडरस्टैंड कि शनिदेव पूरी तरह से जब आपको उस स्ट्रगल में, पराक्रम में डालेंगे, तो जाते जाते शनिदेव 100% आपको उसका रिवॉर्ड भी देके जाते हैं। और वो रिवॉर्ड क्या है वो भी समझ लीजिएगा। 4 चीज़ें हैं जो मेरी अपनी हैं। मुझे लगता नहीं वीडियो अब कहीं पे, कोई भी चैनल पे इसके बारे में कहीं पे सुनोगे, कम से कम मैंने तो नहीं देखा। 4 चीज़ें जो मैंने देखी है ज़िंदगी में, हमेशा होती है साढ़े सती के दौरान ही। नंबर 1, इफ़ यू आर नॉट मैरिड यू विल गेट मैरिड। नंबर 2, इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, जो नहीं हो रहा कंसेप्शन, वो कंसेप्शन हो जाता है, यानी कि आप पिता या माता बन जाते हैं। नंबर 3, आपके सर पे अगर कोई छत नहीं है तो आपकी परमानेंट छत बन जाती है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में अटकी हुई तो वो अटक जाती है। और आपको एक वाहन मिलता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन आपको शनिदेव देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कब देते हैं। शनिदेव आपको पहले ढैया में पूरा परखेंगे, पूरा टेस्ट करेंगे कि आपको जो मैं स्ट्रगल में डाल रहा हूं, क्या वो स्ट्रगल में आप डिवोटेडली आगे बढ़ रहे हो, या आप स्ट्रगल को देख करके आप गलत चीज़ों की तरफ चले गए हो। यानी कि मेरे पे स्ट्रगल आया, मुझे पैसों की दिक्कत है, और मैंने उस पैसे को कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लिया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर गलत रास्ता अपना लिया जो शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके ही हेट्स, शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है शराब, जुआ, किसी भी तरह का सट्टा वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। माँ बाप की सेवा ना करना, माँ बाप से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, ओके, मेरे भी हुए हैं, मैं हर चीज़ ऑनेस्टली बोलूँगा। ये सभी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आ जाएगी। और अगर आप किसी बहुत अच्छे ओहदे पे काम करते हैं और उस ओहदे का आपको घमंड आ गया है, ओके, शनिदेव आपको फिर से नीचे ला के बता देंगे कि तेरी यही जगह है, ओके, बिकॉज आप में मैं आ गया था, मैं, और वो मैं शनिदेव पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। आपको मैं और एक बात बता देता हूँ शनिदेव के बारे में। आपकी कुंडली में शनिदेव जहाँ पर भी हैं चार्ट में, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में, शनिदेव लौट करके पूरा भ्रमण कर करके वो उसी जगह पे पहुंचेंगे जिसे हम कहते हैं सैटर्न रिटर्न्स। नाउ सैटर्न रिटर्न्स नॉर्मली हैपेंस एट द एज ऑफ 28 एंड देन अगेन एट द एज ऑफ 56, लगभग उस समय 28 का जो सैटर्न रिटर्न होता है उसमें आपको मेच्योरिटी आती है। मैंने बहुत से लोगों को उस टाइम पे अपनी ज़िंदगी के का प्रोफेशन चेंज करते हुए देखा है। एक नया रास्ता उनके लिए खुल जाता है और वो रास्ता फिर आपके लिए परमानेंट रास्ता बन जाता है। चाहे आपने 21 साल की 22 साल की उम्र में कुछ भी प्लान क्यों ना किया हो, लेकिन अब आपने वो पूरा प्लान चेंज कर दिया, एक नया पाथ आपको मिल गया है। अगेन दैट हैपेंस एट द एज ऑफ 56, जब आपने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया है। अब शनिदेव बोलते हैं आपको ये चीज़ दुनिया को लौटानी है। योर एक्सपीरियंस यू हैव टू गिव इट टू, मतलब ज्ञान अभी बांटने का समय है। तो यू मे बिकम अ कंसल्टेंट बिफोर यू रिटायर, और आफ्टर यू रिटायर you may start coaching people or doing something else। कोई ना कोई रास्ता आप ऐसा अपनाना चाहिए भी, जहाँ पर आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस अनुभव को आप शेयर कीजिए।
तो ये सब बातें हैं जो सैटर्न के इसमें होती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि शनिदेव जिस तरह से प्लान करते हैं, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे अच्छे ज्ञानी उनके सामने फेल हो जाते हैं। कोई कोई कुछ नहीं बता सकता आपको। आप पे साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती के कुछ उपाय है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपकी साढ़े सती माइल्ड हो जाएगी। पूरी तरह से इरेडिकेट करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप अगर उनको खुश करना चाहते हैं तो मैं आपको इतना बता देता हूँ। सबसे अच्छा उपाय है, पहले तो लोहे का एक छल्ला मिलता है जो आपको मिडिल फिंगर में, आपके मिडिल फिंगर में पहनना है। ये 15-20 रुपए की चीज़ है। वो लोहे का छल्ला अंदर से कटा हुआ होता है, आपको वो धारण करना है। नंबर 2, सैटरडे को आप शनिदेव को तेल चढ़ाने चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियां खराब होने पर आप छायादान कीजिए। मैंने छायादान के बारे में वीडियो बना करके डाल दिया है, आप चाहो तो उसके बारे में मैं आपको फिर किसी जगह पे एक्सप्लेन करूंगा। छायादान, हनुमान चालीसा, ये लोहे का छल्ला, आपको ये चीज़ पहनोगे तो आपकी साढ़े सती काफ़ी काफ़ी हद तक माइल्ड हो जाएगी। कर्मों का भुगतान तो करना होगा, लेकिन आपको शनिदेव रास्ता भी दिखाएंगे। वो कभी आपको भूखा नहीं सुलाएंगे। आपको इतना भी बताता हूं, चाहे परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, आपको आपके सामने वो सभी लोगों का की रियल पिक्चर आपके सामने लाएंगे कि जिन पे आप बहुत भरोसा करते थे। उन मित्रों पे, दोस्तों पे, यारों पे जिन पे आपने बहुत भरोसा किया, आपने काफ़ी खर्चा किया, वो आपको लगता था कि मेरी तकलीफ में हमेशा सामने खड़े होंगे, उन लोगों को आप दूर जाता हुआ देखोगे, बिकॉज शनिदेव आपको कोई लेसन सिखा रहे हैं। सो मित्रों, मैं आपको शनिदेव के बारे में यही बताना चाहता था। और अभी फिलहाल जो साढ़े सती है किस पे चल रही है आपको मैं बता देता हूं। इस वक्त साढ़े सती अभी आखिरी छोर पे सजिटेरियस के लिए है। मिडिल फेस यानी कि उनका जो मिडिल का फेस है वो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के ऊपर है, और जो पहला फेस लगा है वो है एक्वेरियस के ऊपर यानी कि कुंभ राशि के ऊपर। जिनकी भी कुंभ राशि है यानी कि मून राशि है, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत आराम से चीज़ों का कीजिए। आप क्या स्टेटमेंट देते हो वो देखिएगा। कोई भी स्टेटमेंट में आपका ये नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ का घमंड कहीं नजर आए। और एक बात का और भी विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एक्वेरियस अगर लग्न भी है, ओके, तो भी थोड़ा सा सतर्क होइए, बिकॉज उनके लिए भी मैंने देखा है, ओके, कि मैंने देखा है कि लग्न के ऊपर भी ये काफ़ी वक्त काफ़ी काम करता है। ओके, नॉट एज मच एज इट वर्क्स ऑन द मून राशि, बट लग्न पे भी ये काम करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। साढ़े सती के ऊपर वीडियो है। मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग साढ़े सती से गुजर रहे हैं, अगर वो चाहो तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन का जो बेल है उस पर क्लिक कीजिएगा। और मैं धन्यवाद करता हूं बहुत से लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई एम एक्चुअली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।